Good morning to all of you. Am I audible? Good morning. So in last class we have started discussion of Rowlatt Satyagraha, and that was the first national issue addressed by Gandhi. So we are going to discuss this topic. What was this Rowlatt Satyagraha? Clear? So Rowlatt Act I have already discussed with you that during the period of First World War, the British were already engaged in First World War. Okay, voice is clear, Bipin? Voice ठीक है ना? The British were already engaged in First World War, and in the same phase from 1908 onwards, that I have already discussed with you, that the first phase of revolutionary activities were in progress, right? First phase of revolutionary activities were in progress at this time. Clear? And these revolutionary activities were like additional challenges for the British government. Now, the British government wanted to curb or to check these revolutionary activities, and for that purpose, they set up a committee in 1917. And this committee was set up under the chairmanship of Sir Sidney Rowlatt, right? This committee had to give recommendations on how to check the growth of revolutionary activities in India. Clear? And finally, the committee gave its recommendations. Clear? And among these recommendations, the most important point was what I have already discussed in the last class, that okay, the British government now was authorized to search, to arrest without any warrant, plus detention up to 2 years. And that is what? That is a draconian law. You can easily imagine that these laws were introduced in order to check the growth of revolutionary activities. So these were draconian laws. ये laws क्या थे? Draconian laws. Okay? And these laws were also called Black Act. इसको क्या कहा गया? Black Act भी कहा गया. And these recommendations of this Sydney Rowlatt Commission were to be incorporated in Act of 1919. And Act of 1919 was like future legislation for India. क्योंकि इसके पहले सब कुछ कैसे हो रहा था? एक्ट ऑफ 1909 से आने वाले 10 साल तक एक्ट ऑफ 1909 के अकॉर्डिंग चीजें चली, और 1919 के अकॉर्डिंग फिर आने वाले टाइम में देख, तो इट वाज लाइक फ्यूचर लेजिस्लेशन फॉर इंडिया. It was like future legislation for India, and this was very important. This is also called Montagu-Chelmsford reforms, and these recommendations were to be part of this act of 1919, and this causes great resentment among the Indian people. ठीक है, गुस्सा होगा लोगों में, because this is like use of brutal force to suppress the ongoing national movement, because there was already an ongoing national movement. So this may be termed as the use of brutal force. अगर आप ये दो provisions जो मैंने बताए थे, अगर आप इनको use करते हो, तो this is what? Use of brutal force. Why use of brutal force? So to suppress the ongoing national movement. This was the purpose, to suppress the ongoing national movement, or you can say that to check the growth of revolutionary activities in India, or you can say that to check the growth and consolidation of nationalist feelings and sentiments among the Indian people. This is very simple. Got it? In last class, I have discussed that Gandhi decided, to launch a satyagraha on this issue, and that's why this satyagraha is called Rowlatt Satyagraha. Gandhi decided to launch a satyagraha opposing the recommendations of this Rowlatt Commission, and that is why this is called Rowlatt Satyagraha. And this was the first national issue that was addressed by Gandhi. It was the first national issue that was addressed by the Gandhi. In last class, I have already discussed with you
हु सपोर्टेड, हु डिड नॉट सपोर्ट, बता चुका हूं. दिस राउलेट सत्याग्रह विल नॉट गेट द ऑफिशियल सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस इज वन ऑफ इट्स सीरियस लिमिटेशंस. ये डिस्कस कर चुका हूं. किन लीडर्स ने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, ये भी डिस्कस कर चुका हूं. नाउ व्हाट विल बी द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू बी यूज्ड इन दिस राउलेट सत्याग्रह, ये हमें समझना है. दैट इज द सेकंड पॉइंट, दैट व्हाट आर द मेथड्स and strategies that will be used in this Rowlatt Satyagraha. ठीक है, कौन कौन से मेथड्स और स्ट्रेटजीज होंगे? नाउ यू कैन इजीली मेक सिंपल गेस. पहला क्या हो गया? सत्याग्रह टेक्निक्स, टैक्टिक्स. सत्याग्रह टैक्टिक्स, गांधी जो पहले से लोगों को ट्रेन कर रहे थे. सत्याग्रह टैक्टिक्स, ठीक है. हाउ टू बी अ ट्रू सत्याग्रही, गांधी ने ट्रेन किया था ना लोगों को. साबरमती आश्रम, ऑल दीज आश्रम्स वर सेट अप फॉर कि लोगों को कम्युनिटी लाइफ को के बारे में एजुकेट किया जा सके और उनको सत्याग्रह कैसे यूज करना है इसकी ट्रेनिंग दी जा सके. यूज ऑफ नॉन वायलेंस, ये लोगों को सिखाया जा सके. यूज ऑफ नॉन वायलेंस. सत्याग्रही होने का मतलब क्या है? फाइटिंग ब्रूट फोर्स विथ योर सोल फोर्स, आत्मबल से. सोल फोर्स का मतलब क्या है? कि सत्याग्रही का मतलब है कि यू विल नॉट रेस्पॉन्ड टू any kind of brutal activities with violence. You will always respond with non-violence, and this is the strength of a true satyagrahi. This is not weakness, this is your strength or power. So satyagraha tactics mein the most important tactics is what? Fighting brute force with soul force. Fighting brute force with soul force, ठीक है ना? With soul force. Soul force, it means never respond to any violence as in the form of counter violence. आपको क्या करना है? नॉन वायलेंस से ही चीजों को वो करना है. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? पीसफुल प्रोटेस्ट. पीसफुल प्रोटेस्ट. गांधी के प्रोटेस्ट कैसे होंगे बताओ? कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, पीसफुल प्रोटेस्ट. मॉडरेट्स भी खुश होंगे इस तरीका से, बताइए आपको. सो पीसफुल प्रोटेस्ट, दिस इज व्हाट? controlled mass movements through controlled mass movements, peaceful protest. Will there be some kind of nationwide protest or strikes? Yes, nationwide protest होगा, strike होगा, लोग राउलेट सत्याग्रह का विरोध करेंगे, बट वो वायलेंस यूज नहीं करेंगे. मेरी बात समझ गया ना? तो nationwide protests and हड़ताल्स will be launched here. We can say that nationwide protests and हड़ताल्स will be launched. बट ये जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट और हड़ताल होगा, दिस इज कंट्रोल्ड. इट मींस नो यूज ऑफ वायलेंस. यही गांधीयन टेक्निक्स की सबसे बड़ी बात है. ओके, विल द टेक्निक ऑफ नॉन कोऑपरेशन विल बी यूज्ड? यस, नॉन कोऑपरेशन का भी टेक्निक यूज होगा. नॉन कोऑपरेशन, ओके. नॉन कोऑपरेशन किस तरह से? एक पीसफुल मैनर में नॉन कोऑपरेशन. इज इट क्लियर? नॉन कोऑपरेशन मींस व्हाट? दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी will join Rowlatt Satyagraha and they will do what? गांधी वो महाभारत वाली कहानी सुनाते थे, तो they will do what? They will start boycotting law court. ठीक है, तो ये टेक्निक भी यूज होगा. बट ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बड़ा ही क्लियरली विजिबल है. मेरी बात समझ गया ना? यहाँ पे वो क्लियर विजिबल नहीं है क्योंकि आईएनसी का प्लेटफॉर्म यूज नहीं हुआ है, बट नॉन कोऑपरेशन एज अ टेक्निक वाज यूज. तो यू कैन राइट हियर नॉन कोऑपरेशन सिंपली मींस व्हाट? बायकॉट. बायकॉट. बायकॉट ऑफ व्हाट? Foreign goods, foreign cloths. Boycott of foreign goods, foreign cloth. देखो सारे पॉइंट्स कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, यही तो हमें पहचानना है. देखिए कि कुछ नया नहीं होता है, ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे. बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ. क्या यहाँ लिख सकते हैं पैसिव रेसिस्टेंस वाज आल्सो यूज्ड एज अ टेक्निक? यस. एंड डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस? पहले बता चुका हूँ. पैसिव रेसिस्टेंस क्या है? दिस इज द बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, schools, colleges, government institutions. Okay, you can write here boycott of law courts, right? Colleges, schools, government institutions, in सब का भी boycott होगा, right? That is one point. Now, will the techniques of civil disobedience will also be used? Civil disobedience क्या यूज होगा? Civil disobedience, yes or no? ये टेक्निकल चीजें हैं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. क्या सिविल डिसोबीडियंस केवल 1930 में यूज हुआ था एज अ स्ट्रेटजी? नहीं. सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है?
disobedience of law, simply. For example, when Gandhi went Champaran, so what district magistrate will say? You are not allowed to address political campaigns. Gandhi did what? कहा मैं तो करूंगा, तुम ऑर्डर निकालो, मैं नहीं मानूंगा. So this is what defines of law. You are defying law. So चंपारण सत्याग्रह was the first act of civil disobedience. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. जनरली हमें क्या समझ में आता है कि 1930 में हुआ. 1930 में वो ऑल इंडिया लेवल पे एक मतलब एस्टैब्लिश्ड एजेंडा के रूप में, स्ट्रेटजी के रूप में यूज हुआ. बट यहाँ पे नोट कर लेना कि चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ऑफ गांधी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ऑफ गांधी. गांधी के सिविल डिसोबीडियंस का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो क्या है? चंपारण सत्याग्रह. गॉट इट? और यहां क्या होगा? ओके, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस. गांधी बिलीव्ड इन कैपेसिटी ऑफ द मासेस और नॉट? यस और नॉट? यस. गांधी अकेले जाने में विश्वास रखते थे क्या? ओके, ये मजाक था. मास गैदरिंग्स और पब्लिक सपोर्ट, बिलीविंग इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस. जितने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप उस मुद्दे को उतना प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लोगों को उतना अवेयर कर सकते हो. सो रेड दिस मास गैदरिंग. मास गैदरिंग, ठीक है, मास गैदरिंग. जो आदमी मास गैदरिंग को एड्रेस करेगा वही तो मास लीडर बनेगा. ठीक है. सो मास गैदरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. इफ यू वांट टू बी अ मास लीडर, सो फर्स्ट यू विल लर्न हाउ टू मोबिलाइज द मासेस. लोगों को इकट्ठा कैसे करो, उनको अपनी बात कैसे पहुंचा सको, तब तो आप मास लीडर बनोगे. सो गांधी वाज एक्सपर्ट इन व्हाट? मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स. ये भी एक लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग ऑफ यू पीपल. ठीक है. आफ्टर 1 or 2 year दिस नंबर विल बी 1000, 2000, 10,000, 1 lakh, कुछ भी हो सकता है. राइट? व्हेन आई विल बिकम पॉपुलर, आई विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द मासेस. जब मैं 5 लाख 10 लाख लोगों से कम्युनिकेट करूंगा, तो मेरे कम्युनिकेशन केवल हिस्ट्री रहेंगे कि कुछ और एरियाज में आ जाएंगे? ऑब्वियसली. क्लियर? So this is the technique of mass mobilization. If I want to become a mass leader, first I will have to learn that how to mobilize the masses. Got it? Okay. So Gandhi was expert. Right? This Gandhi was expert in what? Mass mobilization. ये word बहुत important है, लिख लेना. Gandhi was expert in mass mobilization techniques. और आपको भी लीडर बनना है तो ये ध्यान रखना, कल के डेट में लीडर वीडर बनो तो मास मोबिलाइजेशन टेक्निक आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपके जाते ही भीड़ साफ हो जाए वहां से. ठीक है, ऐसा लीडर नहीं बनना है. मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है ना. और कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, आई होप यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट. ठीक है ना. सो दिस इज गांधी. ही वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द मासेस. ही वाज ट्राइंग टू एड्रेस द लार्जर ऑडियंस. इतनी सी बात है. क्या इसका फायदा होगा? इफ गांधी विल कम्युनिकेट विद द मासेस, he will communicate about Rowlatt Act. Rowlatt Act के बारे में आप बताओगे तो आप ये बताओगे ना कि this Rowlatt Act has been introduced to check the growth of nationalism. तो लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि what is nationalism. लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि there is British rule. What this British Raj is doing in India, they are exploiting Indian people. तो इससे लोगों का political awareness बढ़ेगा. गांधी को पता था कि राउलेट सत्याग्रह से आजादी नहीं मिल पाएगी. गांधी वॉज नोइंग कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इतनी जल्दी आजादी मिल जाए, ये सोचना भी क्या है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है. इट विल टेक टाइम, बट ही स्टिल लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. मेरी बात समझ गया ना. ही वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. वी विल ट्राई आवर बेस्ट, but this might be possible that it will take longer time, but we will not change our methods, will not change our strategies. Got it? ठीक है. तो ये तरीका था गांधी का, and that is a very excellent method. Okay, so Gandhi wanted to address larger audiences. This is his main motive. He wanted to address larger audiences, and in this way he wanted to establish mass communication. मास कम्युनिकेशन को भी वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लार्जर ऑडियंसेस को एड्रेस करना चाहते हैं और मास कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. दिस इज गांधी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट राउलेट सत्याग्रह में क्या हो रहा है. दिस राउलेट सत्याग्रह बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया.
इट वॉज मोर पॉपुलर इन पंजाब एंड अमृतसर। तो देखो, अब गांधी की पॉपुलैरिटी पहले कहां थी? बिहार, गुजरात। नाउ पॉपुलैरिटी ऑल अक्रॉस द नेशन। कि रॉलेट सत्याग्रह को कौन लीड कर रहा है? गांधी। अच्छा, कांग्रेस के दूसरे लीडर्स के कंपैरिजन में गांधी की पॉपुलैरिटी अचानक क्या हुई? देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी। अचानक से पॉपुलर होना शुरू हुआ। जैसे आप अचानक से पॉपुलर होना शुरू हो गए, मार्केट में खलबली मचेगी, गांधी को लेके खलबली मचेगी, ये कौन आया है नया लीडर, सबको चैलेंज देना शुरू कर दिया। दोनों चीजें एक साथ होंगी। ही इज इमर्जिंग एज अ पॉलिटिकल लीडर, एंड व्हेन यू विल इमर्ज एज अ लीडर, व्हेन यू विल इमर्ज एज अ न्यू कंपटीटर, हर जगह देखो कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में वैसा कंपटीशन नहीं है, द लीडर्स विल cooperate each other, but still, okay, there will be a fight for supremacy। ये बात किसने कही? कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने कही। हम पूरी तरह से इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर आर सम टशल ऑफ पावर। इस बात से हम डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स वेयर यू विल कम टू नो दैट वेयर दिस टशल ऑफ पावर इज सीन। ये उतना ज्यादा नहीं था जितना कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने बताया, बट स्टिल था। तो in Punjab and Amritsar region, the extension of Rowlatt Satyagraha is seen. Right? This Punjab and Amritsar region. Punjab and Amritsar region, the extension of Rowlatt Satyagraha is seen. पंजाब और अमृतसर रीजन में सत्याग्रह का, राउलेट सत्याग्रह का एक्सटेंशन हुआ। एंड हियर there were two important leaders, two prominent leaders who were सपोर्टर्स और फॉलोअर ऑफ गांधी। गांधी के फैन बनने लगे थे धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे बिहार वाले सारे लीडर्स गांधी के फैन बन चुके थे, गुजरात में कई सारे नए लीडर्स गांधी के फैन बन चुके थे। इसी तरह से पंजाब और अमृतसर में देयर वर टू लीडर्स। ओके, द नेम ऑफ दीज लीडर्स इज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स, ये फैक्ट को हाईलाइट कर लेना। वन लीडर नेम इज डॉक्टर सतपाल, one leader name is Dr. Satpal, and the second leader is Dr. Saifuddin Kichlu. Dr. Saifuddin Kichlu. So there are two leaders. One is Dr. Satpal, and the second is Dr. Saifuddin Kichlu. They are two leaders. They were supporters of Gandhi. Clear? And they did what? They were लीडिंग राउलेट सत्याग्रह इन पंजाब एंड अमृतसर से। पंजाब और अमृतसर में वो राउलेट सत्याग्रह क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। दे सेंड एन इनविटेशन टू गांधी कि गांधी बाबा, जैसे आप चंपारण गए थे, जैसे आप खेड़ा गए थे, जैसे आप अहमदाबाद गए थे, वैसे ही आप कहाँ चले आओ? पंजाब एंड अमृतसर। तो दे सेंट एन इनविटेशन टू गांधी। नाउ ब्रिटिश अथॉरिटीज वर वेरी अलर्ट अबाउट द रोल ऑफ गांधी। उनको पता था कि धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए चैलेंज खड़ी कर देगा। Now what will happen? British authorities were very alert. So Dr. Saifuddin Kichlu sent an invitation to Gandhi. They sent an invitation to Gandhi. Sent an invitation to Gandhi that Gandhi must come in Amritsar and Gandhi should address larger audiences Amritsar. गांधी को अमृतसर आना चाहिए और larger audiences को address करना चाहिए. This was the main concern. Now what British authorities will do? They will arrest the leaders here. They will arrest Satpal Kichlu and they will stop Gandhi to come to Punjab and Amritsar region. Leaders को ही arrest कर लो, ठीक है। तो British authorities को यही सुझा, उन्होंने यही उपाय किया। They arrested, read this, they arrested Satpal Kichlu, sorry, Satpal and Saifuddin Kichlu, and they stopped Gandhi from coming to Amritsar to address the masses. गांधी को रोक दिया आने से। But this Rowlatt Satyagraha was popular in Punjab and Amritsar. Leader आपका गायब हो गया. Now what will happen? If the masses are filled with nationalist sentiments, ठीक है, लोगों में जुनून है, उत्साह है, और लीडर उनका पुलिस उठा के लेके चली गई, तो फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगा ये डिस्कस करने के लिए क्या लोग कहीं इकट्ठे होंगे? यस, इफ लीडर इज अरेस्टेड, क्लियर, so the masses will assemble at one place to discuss the future strategy. क्योंकि लीडर ही तो बताता है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, लीडर है ही नहीं, तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना।
Okay, so what will happen? The people will assemble in a bagh that is called Jallianwala Bagh. Bagh means समझ रहे हो ना, garden park. Jallianwala Bagh, to discuss the future strategy. ठीक है, so leaders are arrested and now people assembled in Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh to discuss the future strategy. This is Jallianwala Bagh. This is entrance also, exit also. Entrance and exit. So the people assembled here. Okay. Thousands of people assembled in Jallianwala Bagh. Clear? Because the leaders are arrested. And they assembled here, okay, and since they were satyagrahis, Gandhi leader थे, तो ये जो assemble जो लोग हुए, they assembled here, okay, and that was a peaceful crowd, ठीक है ना? It was a non-violent crowd. It was a non-violent crowd, and the people here were assembled peacefully. They were peacefully assembled, and the purpose was to discuss. The purpose was to discuss future strategy and program. This was the purpose. To discuss the future strategy and program was the purpose. यही purpose था. To discuss the future strategy and program. And the date was 13th April. Highlight this date is also important. 13th April 1990. This was the date. 13th April 1990. And this was a festive day also. This day was a festive day also. And it was Baisakhi day. This was a festive day also. It was Baisakhi. और देखो फेस्टिव डेज में पार्क्स में आज भी क्राउड ज्यादा हो जाती है, होता है फेस्टिव डेज पे. ओके, लार्जर नंबर ऑफ पीपल आर गैदर्ड हियर. इट मींस हियर there are some other people also, okay, who have assembled here on this festive day. तो crowd डेली के कंपैरिजन में क्या था, ज्यादा था, right? So this was a festive day also. So the people here were other, you can say, other group of innocent people, women, children were also there. Women और children भी थे क्योंकि ये festive day था. Okay, crowd was larger in comparison to the general days. ठीक है ना? Now what will happen here? Okay, now what the colonial authorities will do? They already have sent the leaders to the jail. Now they thought that, okay, this meeting could be dangerous for the presence of colonial regime. इस मीटिंग की वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर, ठीक है, मीटिंग में लोग कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक सेंटिमेंट प्रमोट होगा, राइट? सो दे थॉट दैट दिस स्ट्रेटजी इज नॉट गुड. ये स्ट्रेटजी अच्छा नहीं है. तो व्हाट विल हैपन? ओके, नाउ an officer was sent here. Okay, the name of that officer was General Dyer, Brigadier General Dyer. Write this name. Okay, an officer was sent here. An officer, brigadier general rank officer, brigadier general rank officer, and the name was General Dyer. General Dyer was sent here, and the purpose was to control this situation. He was sent. Okay, देखो इसका पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी Dyer. This was the complete name. Why I have written this is the popular name which you generally found, General Dyer. ठीक है, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, क्योंकि डायर नाम से दो ऑफिसर्स है तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगा. ये कौन है? जनरल डायर मींस दिस इज REH डायर. ठीक है, दिस वाज ब्रिगेडियर जनरल. ही वाज सेंट हियर टू कंट्रोल द सिचुएशन. क्लियर? व्हाई ही वाज सेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन? इसके पीछे एक रीजन था, और वो रीजन क्या है? व्हेन सैफुद्दीन किचलू and Dr. Satpal were arrested, British authorities issued an order. And what was that order? That mass gatherings are prohibited. जैसे आजकल देखो कभी कभी गवर्नमेंट लगा देती है
ठीक है, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो इन द सेम वे द ब्रिटिश अथॉरिटीज हैड इशूड एन ऑर्डर दैट मास गैदरिंग इज प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे क्या हुआ है, मास गैदरिंग हुआ है। द पीपल हैव असेंबल्ड हियर टू डिस्कस द फ्यूचर स्ट्रेटजी एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस। तो अब बताओ कि राउलेट सत्याग्रह में सिविल डिसोबीडियंस एज द टेक्निक यूज हुआ कि नहीं हुआ, कॉमन सेंस है। ओके, सो यू कैन राइट हियर दैट ओके प्रीवियसली an order was issued previously an order was issued previously an order was issued, and what was that order, the order was that mass gatherings are prohibited, yahi order tha, mass gatherings are prohibited, previously an order was issued, और वो ऑर्डर क्या है, मास गैदरिंग्स वेर प्रोहिबिटेड, ये ऑर्डर था। एंड दिस गैदरिंग इज व्हाट, violation of this order, this gathering was what, violation of this order. General Dyer was sent to control the situation, and how he controlled the situation, this is very strange, ठीक है। क्या एज ए ऑफिसर आप ऐसा कर पाओगे जो जनरल डायर ने किया, ये मैं बताने जा रहा हूं। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ जनरल डायर कंट्रोल्ड द सिचुएशन, हाउ जनरल डायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाउ जनरल डायर कंट्रोल्ड द सिचुएशन, कंट्रोल्ड द सिचुएशन, इसने सिचुएशन कैसे कंट्रोल किया। और ये हिस्ट्री का बड़ा ही एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमें जानना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि एक गुलाम देश में और आजाद देश में क्या डिफरेंस होता है। आज कोई भी अधिकारी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता जो जनरल डायर ने किया, यही फर्क होता है व्हेन फॉरेन पावर इज रूलिंग योर कंट्री, राइट। सो दिस इज द पार्क ना, जलियांवाला बाग, दिस बाग हैज okay you can say a single entrance and exit gate, single entrance and exit, and the bar bag or garden is surrounded by high buildings on all the sides, तो इसके चारों तरफ से आप निकल नहीं सकते, it is surrounded by buildings, ठीक है, it is surrounded by buildings, buildings, this is the single entrance and exit point, ये single entrance and exit point. Now General Dyer asked his soldiers to open fire on the crowd without giving them any previous warning. ये भी कहा जा सकता था कि आप बाग को क्या करो, खाली करो, गार्डन को खाली करो। So without giving, that is very strange, that without giving any previous warnings, without giving any previous warnings, General Dyer asked his soldiers to open fire, asked his soldiers to open fire. देखो बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग, थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर क्लास में जो पढ़ाया हूँ उससे थोड़ा ज्यादा डिटेल में, ठीक है, कि एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो तो फिर वो कंप्लीट हो जाए क्लास में, केवल क्लास की चीजों को पढ़ो, राइट। सो वी आर जस्ट रीडिंग लाइक स्टोरी की चीजें सारी बेहतर ढंग से तैयार हो जाए, राइट। सो जनरल डायर आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर विदाउट एनी प्रीवियस वार्निंग, ओके, राइट। अच्छा देखो, इसने फायर भी ओपन करवाया तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया अपने सोल्जर्स को कि टारगेट वहां पे करो जहां पे भीड़ ज्यादा है, गॉट इट। सो विद इन 10 मिनट्स राइट दिस, विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पे देखो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड विद इन 10 मिनट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड 10 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आज के टाइम में भी कोई दुर्घटना होता है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो सरकारी डाटा क्या होता है, इज इट द एक्चुअल डाटा, नहीं, ठीक है। ट्रेन एक्सीडेंट में भी देखोगे एक्चुअल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, फिर भी हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है, गलती से कुछ छूट गया या कुछ ऐसा अकाउंट नहीं हुआ तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट इज द गवर्नमेंट डाटा हियर, फर्स्ट मैं बात करूंगा गवर्नमेंट डाटा की। सो राइट दिस गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट डाटा क्या है, गवर्नमेंट डाटा, government data was 379 people were dead, 379 people were dead। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट वी शुड नो टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना। 379 people were dead and nearly 1500 people were wounded or injured। ये गवर्नमेंट डाटा है कि 379, देखो कुछ कुछ बुक्स में ये 376 भी लिखा रहता है,
तो इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है, मैंने गलत नहीं बताया। 376 और 379 people were dead and nearly 1500 people were wounded or injured. This is what government data, ठीक है। But according to the sources, local sources, ठीक है, the number of casualties was more than 1000, ठीक है, ये गवर्नमेंट डाटा है। You can write here that according to some local sources the casualties were more than 1000। लोगों का मानना है कि casualties क्या थी, more than 1000 थी। इस जालियांवाला बाग कैंपस के अंदर एक वेल था, कुआं, ठीक है, और गोलियों से बचने के लिए लोग उस कुएं में कूद गए थे। And nearly 120 people dead bodies were recovered from this well। इस कुएं से 120 डेड बॉडीज रिकवर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्या ये डाटा 366, 376 या 379 होगा? नहीं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था निकल के भागने का, चारों तरफ से घिर गए, तो लोगों ने छलांग कहां लगाई? कुएं में। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर आल्सो डेड, ठीक है, women and children were also dead। Now tell me, is this the proper way to control the situation? Yes or no? No। So this is a brutal act, this is a brutal suppression। ये मैसेज देना था हिंदुस्तानी लोगों को कि गांधी के बहकावे में आ रहे हो ना, बार बार ये जो भीड़ इकट्ठी कर ले रहे हो, दोबारा कभी हुआ तो ऐसे ही गोली चल जाएगी, ये डराने का तरीका था। मेरी बात समझ गया ना? दिस इज a way to create a sense of fear in the minds of Indian people so that the people will fear in future to assemble at one place to fight with colonial rule। क्योंकि गवर्नमेंट किस चीज से डर रही थी समझो? मास मूवमेंट से, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट से, इफेक्टिव यूज ऑफ नॉन वायलेंस से गवर्नमेंट डर रही थी, ये बात समझना है। तो ऐसा नहीं कि गांधीयन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स वेर not effective, they were effective, government was fearing। okay, so this happened। okay, right, next point। okay, right, how the British government responded to this situation। British government ने कैसे respond किया? how the British government, this incident is called Jallianwala Massacre। इसको हम क्या कहते हैं? this incident is called Jallianwala Massacre। the date is 13th April 1919, and now we have to discuss two aspects: how British government responded to this situation and how nationalist leaders or Indian leaders or nationalist leaders responded towards this situation। दोनों का क्या response था, ठीक है ना? That is the most important thing। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम जनरल डायर की बात करते हैं। जनरल डायर, was he shameful on this act? No। okay, he did not felt any okay remorse, उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। okay, that he said that this act was right, no remorse after his actions, right? This General Dyer himself had no remorse, कोई इसको पछतावा नहीं था for his actions, no remorse for his actions। he was not shameful, he was not shameful। okay, very proudly he said that this was the most appropriate way to deal with these people। बहुत proudly उसने कहा, जनरल डायर, okay, very proudly said that, very proudly he said that this was the most appropriate way, this was the most appropriate way, ये सबसे सही तरीका था, this was the most appropriate way to deal with these people, to deal with these people। he had no sense of guilt। clear what he said? he said that remember revolt of 1857। जनरल डायर ये कहता है याद करो रिवोल्ट ऑफ 1857। उसने कहा if I would not have taken this step on 13th April, तो in future the British Raj could see another revolt like revolt of 1857। so I have prevented such powerful revolt to you can say to happen in India again। मैंने उतना पावरफुल रिवोल्ट दोबारा होने से रोक दिया। अगर ये टेरर मैं नहीं क्रिएट करता लोगों के दिमाग में, तो शायद लोग दोबारा रिवोल्ट करते और उस रिवोल्ट में
अंग्रेजों के लाइफ को नुकसान होता. दिस इज हिज जस्टिफिकेशन दैट आई हैव प्रिवेंटेड, ओके, a revolt like revolt of 1857 in future. Got it? Now the government क्या करती है, इसने अपनी सफाई दे दी. Now the British government set up a commission, read this, to inquire into this act. Set up a commission to inquire into this act. This commission is called Hunter Commission. एक और हंटर था, याद है ना, एजुकेशन से 1882. ये दूसरा है. दिस इज हंटर कमीशन, रेड दिस, हंटर कमिटी. हंटर कमिटी भी कहते हैं इसको, हंटर कमीशन लिख लो, हंटर कमीशन. ठीक है, हंटर कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप, ओके, हंटर कमीशन. अब देखो कमीशन ने ब्लेम किया कि नहीं जनरल डायर को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग. कमीशन डिड नॉट फाउंड जनरल डायर गिल्टी. कमीशन ने कहा जनरल डायर दोषी नहीं है. इंस्टीड ही वाज प्रेज्ड एंड ही वाज सेव्ड एज द सेवियर ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया. उसकी तारीफ की गई और कहा गया कि जनरल डायर ने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज को पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत किया है. दिस इज द ओपिनियन ऑफ द हंटर कमीशन. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट दैट हंटर कमीशन डिड नॉट फाउंड जनरल डायर गिल्टी. General Dyer guilty. Instead, he was praised for his act. Instead, he was praised for his act, and he was called savior of the empire, savior of the British Raj. Instead, he was praised for this act, and he was called savior of the British Empire. Got it? Now, what will happen? Indian leaders, how they responded to the situation? Obvious है, they will criticize. सबसे पहले तो बात हम गांधी की करते हैं. ठीक है, गांधी. गांधी ने क्या किया? तो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किसने किया था? गांधी ने. सो विथ जालियांवाला मैसेकर, गांधी विल अनाउंस दैट दिस रॉलेट सत्याग्रह इज स्टॉप्ड. गांधी ने सबसे पहले ये अनाउंस किया. सो राइट दिस, विथ रॉलेट सत्याग्रह, विथ रॉलेट, सॉरी, विथ जालियांवाला मैसेकर, विथ जालियांवाला मैसेकर इंसिडेंट, with Jallianwala Massacre incident, Gandhi announced that Rowlatt Satyagraha is suspended. Gandhi announced that Rowlatt Satyagraha is suspended. ठीक है, गांधी ने अनाउंस किया Rowlatt Satyagraha is suspended. और दूसरी बात क्या कही गांधी ने? ओके, राइट. Gandhi also accepted that okay, Rowlatt Satyagraha was like a Himalayan blunder for him. Rowlatt Satyagraha was also like Himalayan blunder for him. Got it? राउलेट सत्याग्रह क्या है? हिमालयन ब्लंडर. हिमालयन ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे सत्याग्रह करना ही नहीं चाहिए था. दिस वाज द आउटलुक ऑफ गांधी. व्हाई गांधी इज सेइंग सो? गांधी ऐसा क्यों करे? आप कुछ गेस कर सकते हो आकाश? व्हाई गांधी इज सेइंग दिस इज अ हिमालयन ब्लंडर? वेरी गुड, दिस इज वन पॉइंट, बट देयर इज अनदर डायमेंशन आल्सो. दूसरा डायमेंशन क्या है आप बताओ? अगर पंजाब अमृतसर में ऐसी घटना हो जाएगी तो लोग चुप बैठेंगे क्या? Exactly. It means when Jallianwala massacre will take place, the people will take law and order in their own hands. अगले दिन से क्या होगा? लोग सड़कों पे उतरेंगे, कुछ वायलेंस तो होगा ना. रिएक्शन में क्या होगा? वायलेंस. गांधी ने क्या कहा? हिमालयन ब्लंडर क्यों है? पहला रीजन क्या है? गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट इट that this will happen, and the loss of lives, Gandhi think that I am responsible for the loss of lives of these people. ये पहला डायमेंशन. दूसरा, after Jallianwala massacre, the people did what? The people resorted in some violent reactions. लोगों ने कुछ violent reactions दिए,
And Gandhi had previously said that no violent reactions at any cost. अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, सत्याग्रह कर रहे हो, तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है आपको पता है. वायलेंस फिर भी नहीं करना है. एंड एट दिस पॉइंट गांधी सेज दैट दिस वाज लाइक अ हिमालयन ब्लंडर. मेरी बात समझ गया ना? तो इस बात को लिखो. व्हाई गांधी इज सेइंग एक्सेप्टेड दैट इट वाज लाइक हिमालयन ब्लंडर. हिमालयन ब्लंडर मींस बिग मिस्टेक. दिस इज द सिंपल पॉइंट. Gandhi accepts that this was like a Himalayan blunder. What is the reason for saying this? There are two reasons that Gandhi accepted as a Himalayan blunder. दो reasons. Like reason one क्या है? Okay, Gandhi considers himself responsible for the loss of life of these innocent people. Gandhi considers himself responsible for the loss of life of these innocent people. Gandhi considers himself responsible for the loss of life of these innocent people. वो खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं. Second point, read this. After Jallianwala Massacre incident, after Jallianwala Massacre incident, okay, as a counter reaction, some violent activities were seen by Indian people. Okay, after Jallianwala Massacre, as a counter reaction, some violent activities were seen. Some violent activities were seen by Indian people. गुस्सा था लोगों के मन में, ठीक है. और इससे क्या हुआ? राइट, वन मोर पॉइंट. राइट, Gandhi said that these violent incidents indicates that the people are still. Gandhi said that these violent incidents indicate that the people are still not skilled. The people are still not skilled in the arts of सत्याग्रह. लोग अभी भी सत्याग्रह, ठीक है, के स्किल में स्किल्ड नहीं है. दे आर नॉट स्टिल स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, ये हो गया. सो दिस इज व्हाट गांधीयन अप्रोच. अगर गांधी वायलेंस को थोड़ा भी सपोर्ट करते तो अगले मूवमेंट में चांसेस था कि वायलेंस और बढ़ता. और हजारों लाखों लोगों की भीड़ को लेके चलना और उसको कंट्रोल्ड मास मूवमेंट बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है. आप समझो, उस समय की तरह व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, ठीक है, कि आप हर 2 घंटे पे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हो. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स रिएक्शन में. लाइक गांधी हाईलाइट दिस फैक्ट. ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. राइट, गांधी, ओके, renounced Gandhi renounced or gave up his title of Kaisar-e-Hind. Kaisar-e-Hind. Gandhi renounced or gave up his title of Kaisar-e-Hind. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी को ये टाइटल दिया था, कैसर-ए-हिंद. वैसे तो कैसर-ए-हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान का सम्राट. मेरी बात समझ गया ना? तो कैसर-हिंद टाइटल वाज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गांधी. और देने के पीछे रीजन क्या था बताओ? साउथ अफ्रीका, when British were facing difficulty, Gandhi came forward to provide help and support. Boer War 1899 to 1902. First World War. What was the Gandhi's outlook? British difficulty should not be considered as opportunity for India. यही आउटलुक था ना. अंग्रेजों की दिक्कत हमें अवसर के रूप में नहीं समझनी चाहिए. This was the main idea. And for this reason, British government bestowed Gandhi with the title of Kaisar-e-Hind. गांधी ने कहा अपना टाइटल ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसी सरकार जो आम लोगों पे इस तरह का अत्याचार करती है, उससे इस तरह का टाइटल हम नहीं लेना चाहते. एट द सेम टाइम, द अनदर पर्सन, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर also renounced his title. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना. Also renounced his title. और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो टाइटल रिनाउंस किया, दैट टाइटल वाज नाइटहुड. राइट, नाइटहुड.
R.N. Tagore also renounced his title, and this title was the title of knighthood. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये कब रिनाउंस किया था? तो जालियांवाला मैसेकर को अपोज करते हुए रिनाउंस करा था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? एंटायर नेशन इज शेकन बाय द ब्रूटैलिटी ऑफ जालियांवाला बाग। तो देखो, इससे, इस घटना से क्या होगा? राउलेट सत्याग्रह, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ राउलेट एक्ट? दिस विल बिकम पॉपुलर, लोगों का पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा, पीपल विल केम टू नो अबाउट गांधी, गांधी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। गॉट इट राइट? एंड द पीपल विल आल्सो केम टू नो अबाउट द ब्रूटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश राज। ये वही ब्रिटिश राज है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन याद है ना आपको? क्या था क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन? दैट इंडियन सब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड लाइक ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मेरी बात समझ गया ना? इंडियन सब्जेक्ट्स को ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, so that is the most important point. Okay, now I hope you have understood this entire topic. एक पार्ट पहले ही बता चुका हूँ। राइट, वन पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा। वन फैक्ट जस्ट आई एम गिविंग, राइट दिस फैक्ट दैट विल मेक द थिंग्स मोर क्लियर। ओके, देखो क्या है। हैव यू हर्ड द इंसिडेंट ऑफ उधम सिंह? उधम सिंह, रेड दिस, उधम सिंह, उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह, उधम सिंह was a revolutionary, and revolutionary believed in what? Use of forces. We all know this. Revolutionary believed in the use of forces. ठीक है, killings and assassinations, but they believe in individual killings and assassination. Revolutionaries believed in individual killings and assassinations. Individual killings and assassinations they believed, but ये जो था ना, this was selected killings and assassinations. Selected, this was not कि सभी अंग्रेजों को मार देना है। यानी इसमें भी एक ह्यूमैनिटी वाला ग्राउंड था इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का, कि किलिंग्स में सभी अंग्रेजों को नहीं मारना है। व्हाट दे आर सेइंग, दिस विल बी सेलेक्टेड किलिंग्स एंड assassinations, and these selected killings and assassinations will be the killings of unpopular British officials. किसको जान से मारना है? Unpopular British officials को। Got it? Okay? अब देखो क्या है। 13th April 1999 when this incident took place, यहां पे कौन आया? ब्रिगेडियर, ओके, जनरल डायर। बट यहां पे द एलजी ऑफ पंजाब वाज, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब वाज, यहां पे जो एलजी था उसका नाम था, राइट, एम ओ डायर, माइकल ओ डायर। ही वाज द एलजी, read this, Michael O. Dyer, Michael O. Dyer was the lieutenant general. तो यहां पे एक्शन किसने लिया? हेनरी डायर ने, बता चुका हूं नाम। बट उस एक्शन को अप्रूव किसने किया था? एलजी ऑफ पंजाब, this person has approved that order. Got it? Now in 1940, in 1940 udham singh killed whom? उधम सिंह killed माइकल ओ डायर। उधम सिंह ने किसको मारा? माइकल ओ डायर को, who was responsible for approving this order। ठीक है, who was responsible for approving this order, जो इस ऑर्डर को अप्रूव करने के लिए जिम्मेदार था। गॉट इट? ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग दिस ऑर्डर। याद रहेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहता है, आई होप दिस डाउट इज क्लियर। ठीक है, और इसको जिसने ये एग्जीक्यूट किया, जनरल डायर ने, ही वाज गिवन मेडल फॉर हिज पब्लिक सर्विस। ठीक है, उसकी तारीफ की गई, सेवियर ऑफ द ब्रिटिश राज कहा गया। इसका मतलब कुछ तो निकल रहा है ना? क्या मतलब निकल रहा है? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में होने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को फोर्सफुल तरीके से क्रश करना चाहती थी, उनको बहाना चाहिए था, प्रिटेक्स्ट चाहिए था। ठीक है,
यहाँ पे तो पीसफुल मॉब था, फिर भी गोली चलवा दिया। अब आप ये सोचो कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से आप वायलेंट तरीके से लड़ने जाते तो वो क्या करते। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि गांधी ने क्यों नॉन वायलेंस का रास्ता चुना। अभी जो हम जोश में आ जाते हैं और कहते हैं गांधी की वजह से आजादी हमें लेट से मिला, देर से मिला, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिकल ग्राउंड है कोई लॉजिकल ग्राउंड? ठीक है, आजाद होने में इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस का कितना बड़ा रोल है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 1945 के बाद ही तो आजादी मिली हमें, जब क्या शुरू हो चुका था, प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन। इसका मतलब ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू गिव अस पॉलिटिकल रिलैक्सेशंस, ठीक है, उनसे कार मांगो तो टॉय कार ला के दे देते थे, इस तरह की तो कहानी थी, ठीक है। So I hope this topic is clear. Rowlatt Satyagraha is clear. Now, if I ask you a question that, in your opinion, what do you think? Rowlatt Satyagraha was successful or failed? आपके ओपिनियन में क्या है, राउलेट सत्याग्रह इज सक्सेसफुल और अ फेल्ड मूवमेंट? ये भी एक मूवमेंट था, इट वाज अ सक्सेसफुल और फेल्ड मूवमेंट, व्हाट इज योर ओपिनियन? देखो, ये यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उनका एक पहले वाला मॉडल में बता चुका हूँ। द इंट्रोडक्टरी पार्ट विल ऑलवेज बी कॉमन। क्या लिखना है कि इट्स ट्रू दैट राउलेट सत्याग्रह वाज नॉट सक्सेसफुल इन इट्स ऑब्जेक्टिव, बट स्टिल दिस सत्याग्रह कैन नॉट बी कॉल्ड फेल्ड, ठीक है। दिस वाज सिग्निफिकेंट ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस। हमें किसी भी मूवमेंट को फेल्ड नहीं करना है, मेरी बात समझ गया ना। ये बताना है कि यस देयर आर सम लिमिटेशंस और द वीकनेसेस, बट स्टिल इट वाज सिग्निफिकेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ये फिर से लिखो, राइट दिस, बिकॉज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस व्हेन यूपीएससी विल आस्क तो द स्टैंड जो आप स्टैंड लोगे आंसर में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो राइट दिस, इट्स ट्रू दैट राउलेट सत्याग्रह was not successful in realizing its objectives। मैं जानबूझ के वही बात लिखवा रहा हूं जो पहले बता चुका हूं। आई एम जस्ट डिक्टेटिंग द सेम सेंटेंस। इससे क्या होगा, इट विल टेक लेस टाइम टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसलिए मैं कहता हूं नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, राइट। इट्स ट्रू दैट राउलेट सत्याग्रह वाज नॉट सक्सेसफुल इन रियलाइजिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड it was suddenly suspended by Gandhi due to Jallianwala Massacre incident, and it was suddenly suspended by Gandhi due to Jallianwala Massacre incident. It was suddenly suspended by Gandhi due to Jallianwala Massacre incident, right? Jallianwala Massacre incident. But still, the Rowlatt Satyagraha is considered significant or successful, but still, the Rowlatt Satyagraha movement is considered significant or successful due to a variety of reasons. But still, the Rowlatt Satyagraha movement is considered significant or successful due to a variety of reasons. And what are those reasons? Right, point one. Point one क्या होगा? It paved the way for the future political struggle। भविष्य के आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दिया इसने, राइट। It paved the way for the future political struggle। It paved the way for the future political struggle, ठीक है, राइट। सेकेंड पॉइंट, paved the way for the future political struggle, okay, right, second point, okay। Raised the level of political awareness of the masses, raised the level of political awareness of the masses, किया कि नहीं? अच्छा, इस घटना से क्या होगा? ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, ये होगा कि नहीं? यस, राइट दिस पॉइंट, ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, growth and consolidation of nationalist feelings and sentiments, okay, right, next point. It was the first national issue addressed by Gandhi, and Gandhi emerged as a national leader by this movement. It was the first national issue, it was the first national issue addressed by Gandhi, and Gandhi emerged
as a national leader. Gandhi emerged as a national leader. Gandhi emerged as a national leader. ठीक है? Right, next point. It was helpful in intensifying nationalist sentiments, and as a result, it was helpful in intensifying nationalist sentiments, and as a result, it was helpful in intensifying nationalist sentiments, and as a result, widespread dissatisfaction was seen against the British Raj, and as a result, widespread dissatisfaction was seen against the British Raj, against the British Raj. ठीक है? Right, next point. Next point. At global level also, at global level also, many countries of the world condemned this tragic in this tragic massacre. At global level also, many countries of the world, okay, they condemned this tragic massacre incident. अच्छा बताओ, will India gain sympathy? Will India be successful in gaining sympathy of other countries? 1990 में यूएस क्या कहेगा? पता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है आपको? यूएस कहेगा ये क्या चल रहा है इंडिया में भाई? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों को आप देते क्यों नहीं? और यूएस क्या क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि अंग्रेज भागेंगे हिंदुस्तान से तो इंडिया के साथ उसके इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूएस में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है. तो दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट. यहाँ पे लिख सकते हो, इन दिस वे इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन गेनिंग द सपोर्ट एंड सिंपैथी ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल. इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज सक्सेसफुल in gaining the support and sympathy of other countries as well. अदर कंट्रीज एज वेल. मेरी बात समझ गया ना? सपोर्ट और सिंपैथी होगी, ठीक है. अच्छा देखो, जब आपको इंटरनेशनल सपोर्ट और सिंपैथी मिलेगी तो विल इट माउंट अ प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट? यस और नो? यस. ओके, सो राइट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट दिस मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन माउंटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दिस मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन माउंटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट. This movement was successful in mounting pressure on the British government. कितने सारे पॉइंट्स आ गए. अच्छा, अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपसे बात करता हूं. जैसे whenever in question you will find the terms like examine, critically evaluate, तो वहां पे दोनों डायमेंशंस डिस्कस करना होता है. गॉट इट? वीकनेसेस भी डिस्कस करने होते हैं. तो वीकनेसेस वाले पॉइंट्स थोड़े कम होंगे. मेरी बात समझ गया ना? तो उसमें ये नहीं कि वर्ड लिमिट का बराबर बराबर करने चलोगे, ऐसा कुछ नहीं करना. वीकनेसेस में दो तीन पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. नाउ इफ आई से दैट व्हाट आर लिमिटेशंस और वीकनेसेस ऑफ राउलेट सत्याग्रह, क्या है लिमिटेशंस और वीकनेसेस? नाउ यू विल गिव द आंसर. व्हाट आर द लिमिटेशंस और वीकनेसेस? ठीक है, एक एक पॉइंट बताओ सभी लोग. ठीक है, तो 4-5 पॉइंट हो जाएंगे. बताइए. 1 पॉइंट, वन स्टूडेंट 1 पॉइंट. Very good, very good. Write this. Okay. Rowlatt Satyagraha, write this. Rowlatt Satyagraha did not get official platform of INC. INC. ये सबसे बड़ा weakness हो गया. Many important leaders of INC did not support this cause. Many important leaders of INC did not support this cause. सबसे बड़ा weakness है. Organizational support मिला ही नहीं इसको. Many important leaders of INC did not support for this cause. इसका मतलब क्या है? Rowlatt Satyagraha did not get organizational support. ठीक है. और देखो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करते हो, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज होती है वो आपको आगे बढ़ाने में, आपकी इमेज और रेपुटेशन को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है. तो जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं रहेगा तो अकेले अपने दम पे कहां तक लड़ाई लड़ पाओगे. इसी बात को कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मेजर वीकनेस. सेकंड वीकनेस, एनी अदर स्टूडेंट? सेकंड वीकनेस क्या है? Exactly, write this point, that okay, write this. The violent incidents that were seen
after Rowlatt Satyagraha made it clear that the violent incidents that were seen after Rowlatt Satyagraha made it clear that people are still not sufficiently trained. People are still not sufficiently trained. People are still not sufficiently trained in, not sufficiently trained or not sufficiently skilled in in सत्याग्रह, यूज ऑफ सत्याग्रह और सत्याग्रह टैक्टिक्स, सत्याग्रह टैक्टिक्स, ठीक है, यूज ऑफ सत्याग्रह, दे आर नॉट सफिशिएंटली ट्रेंड और दे आर नॉट सफिशिएंटली स्किल्ड, ठीक है, यूज ऑफ सत्याग्रह टैक्टिक्स, इसमें लोग बहुत सफिशिएंटली ट्रेंड नहीं है, बहुत सफिशिएंटली स्किल्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, राउलेट सत्याग्रह पॉपुलर कहां था, शहरों में था या गांवों में था? पहले से भी ये पॉइंट हम लिखते हैं, देखो अभी हाँ, इट वॉज लार्जली कन्फाइंड इन द अर्बन एरियाज, ये भी इसका लिमिटेशन हो गया, सो राइट दिस पॉइंट दैट राउलेट सत्याग्रह वॉज मेनली कन्फाइंड इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज, राउलेट सत्याग्रह वॉज स्टिल मेनली कन्फाइंड इन द अर्बन एरियाज, इट वॉज मेनली कन्फाइंड इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, ये अर्बन एरियाज में ज्यादा कन्फाइंड था, ये बात समझ गया। सो दिस टॉपिक इज डन, राउलेट सत्याग्रह। नाउ यू विल डू व्हाट, जितने भी क्वेश्चंस हैं, और एक फॉर्मेट क्वेश्चन का दैट यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी टॉपिक, पॉपुलर टॉपिक, जैसे राउलेट सत्याग्रह इज पॉपुलर टॉपिक, स्वदेशी मूवमेंट इज पॉपुलर टॉपिक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज पॉपुलर टॉपिक, सीडीएम इज पॉपुलर टॉपिक, जब भी आप रीड कर रहे हो एनसीईआरटी बुक और एनी अदर थिंग जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उस मूवमेंट में कौन से लीडर्स एक्टिव थे उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, तो इससे लीडर्स का नाम आपके दिमाग में आता रहेगा, और उसमें से भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स जो उस मूवमेंट में है दैट यू मस्ट नो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी स्किल्ड इन दिस आर्ट व्हेन यू डू प्रैक्टिस, ठीक है ना, तो जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम है वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सीक्वेंस कि भाई काकरा में से वी हैव डिस्कस व्हाट, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, राउलेट सत्याग्रह, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, असहयोग, दिस इज कॉल्ड non cooperation movement, but between this there is another topic that is Khilafat movement, this we need to study। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले है, इतना ध्यान रखना है, राइट, खिलाफत मूवमेंट इज बिफोर दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सो दिस वी शुड नो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट हैज एन इंटरनेशनल बैकग्राउंड, यहाँ पे द बैकग्राउंड इज व्हाट, इंटरनेशनल, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनेशनल बैकग्राउंड, कि वो इंटरनेशनल बैकग्राउंड क्या है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल बैकग्राउंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ओके। देखो इन वर्ल्ड हिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ दैट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक बार रिकैप करते कुछ चीजों को तो बेटर समझ पाओगे। 1914, 1918, दिस इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यही है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड, क्लियर। एंड व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन दैट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड, क्या था इमीडिएट रीजन, बताओ, याद है आपको, क्लास में कराया मैंने, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो आपको मैंने बताया था सर्बिया, याद है, पैन स्लेविज्म issue in world war, I have discussed with you that Ottoman empire was disintegrating, ठीक है, और Ottoman empire के disintegration के बाद there were Balkan states, ठीक है, and powerful countries of Europe will fight with each other to establish their control over the Balkan states, मेरी बात समझ गए ना। और जो डिसइंटीग्रेशन के बाद बाल्कन स्टेट्स थे जो इमर्ज हो रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम किस चीज की थी, तो वहां पे जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, माइनॉरिटीज, ठीक है, कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इसको लेके पूरा का पूरा डिबेट चल रहा था, जैसा कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको समझाया है, ठीक है। सो दिस डिबेट वाज देयर। नाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड इन दिस वर्ल्ड वॉर, दिस वर्ल्ड वॉर वाज ज्वाइंड बाय टू ग्रुप ऑफ नेशन, नाम तो इसका वर्ल्ड वॉर है, कहना ठीक नहीं है वर्ल्ड वॉर, बट हियर द मेन कंट्रीज
is what? Britain, France, Russia, supported by US, and later Italy also joined this side, and here Germany, Austria, Hungary were fighting. ठीक है, plus this side was also supported by Turkey. इसको यानी ब्रिटेन का जो राइवल ग्रुप है, दिस इज व्हाट? राइवल ग्रुप ऑफ ब्रिटेन, एंड दिस राइवल ग्रुप ऑफ ब्रिटेन वाज आल्सो सपोर्टेड बाय टर्की. ऐसे समझो कि जैसे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हु इज कंसीडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर? रशिया. इन द सेम वे ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हु इज कंसीडर्ड एज द सक्सेसर ऑफ ऑटोमन एम्पायर? टर्की. ठीक है ना, दिस कॉन्सेप्ट. नाउ टर्की ज्वाइंड द राइवल ग्रुप. टर्की राइवल ग्रुप में था. ओके, नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड वी सी दैट दिस ग्रुप वाज विक्टोरियस. दिस ग्रुप वाज विक्टोरियस ग्रुप, ये भी आपको पता है. दिस ग्रुप वाज विक्टोरियस. दिस ग्रुप वाज द डिफीटेड नेशंस. ये क्या थे? डिफीटेड नेशंस थे. ठीक है ना, these were the defeated nations. So with these, after this, a treaty was signed that is known as Paris Peace Treaty. Paris Peace Treaty, ये भी आपको पता है. This Paris Peace Treaty was a group of 5 treaties. ये कितने treaties का group था? 5 treaties का. ये मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया आप लोगों को. इसमें the most important treaty was Treaty of Versailles that was signed with Germany. ये इसकी सबसे important treaty थी. बट इसके अलावा भी इसमें ट्रीटीज थी. ठीक है, जैसे ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन वाज देयर, ट्रीटी ऑफ न्यूली वाज देयर, ट्रीटी ऑफ ट्रिएनो वाज देयर, ट्रीटी ऑफ सेवरॉय वाज देयर. इट मींस अदर कंट्रीज के साथ सेपरेट ट्रीटी साइंड हुई, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. तो इसमें टर्की वाज अ डिफीटेड नेशन और टर्की के साथ एक अलग से ट्रीटी साइन हुआ एंड दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सेवरॉय. राइट दिस. तो बेसिकली यही कंसर्न हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है. सो यू कैन राइट हियर दैट विक्टोरियस नेशंस, दीज आर द विक्टोरियस नेशंस, they signed a treaty with Turkey and this treaty is known as Treaty of Sevres. इसी को हम कहते हैं Treaty of Sevres. Now who will decide the fate of defeated nations? Victorious nations will decide the fate of defeated nations. ये तो हमें पता ही है कि युद्ध में जो जीत गया वही तो तय करेगा the fate of defeated nations. Clear? So this is the point that now victorious nations will decide the fate of defeated nation, the fate of Turkey. So Treaty of Sevres पता हो गया आपको, टर्की के साथ जो ट्रीटी साइन हुआ that is called Treaty of Sevres. It was a part of arrangement of Paris peace settlement. Now Britain was among the victorious nation. Britain was among the victorious nation. Turkey was among the defeated nation. And now we all know that victorious nations will decide the fate or destiny of defeated nations. Victorious nations will decide about the fate or destiny of defeated nations. पराजित राष्ट्रों का भविष्य कैसा होगा ये तय कौन करेगा? वो देश जो जीत गया है, ब्रिटेन तय करेगा. तो ब्रिटेन ने क्या कहा? ब्रिटेन ने ये कहा कि टर्की, इन टर्की, ब्रिटेन सेड दैट इन टर्की द मेडिवल प्यूरिटन सिस्टम विल बी एंडेड. मेडिवल प्यूरिटन सिस्टम को खत्म किया जाएगा. इन टर्की ब्रिटेन विल एंश्योर द पाथ फॉर मॉडर्निटी. टर्की में मॉडर्निटी को कौन लेके आएगा? ब्रिटेन लेके आएगा. जैसे इंडिया में वो कर रहे थे, मॉडर्न इंडिया बना दिया था, वैसे दे आर सेइंग दैट इन टर्की हम मिडिवल एज वाला सिस्टम खत्म करेंगे, देन वी विल डू व्हाट? वी विल ब्रिंग मॉडर्निटी. और इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू अबॉलिश ऑफिस ऑफ कैलिफेट. वी आर गोइंग टू अबॉलिश ऑफिस ऑफ कैलिफेट. खलीफा, कैलिफेट इज कॉल्ड खलीफा. So they said that we will abolish the office of caliphate. And at this point of time, caliphate was the religious head of the people of Turkey. ठीक है? And this caliphate was also giving validation to political power. ये political power को क्या करता था? Validate भी करता था. अब मुद्दा क्या है? कि we will abolish the power of caliphate, office of caliphate.
Caliph was the religious head of the people of Turkey. Not only the people of Turkey, but the Muslims all over the world were considering Caliph as their religious head. ये मुद्दा था. ब्रिटेन ने कहा कि हम कैलिफ के पावर को एबॉलिश करेंगे. And right this point, the Muslims all over the world, including India, Muslims all over the world, including India, Muslims all over the world, including India, were considering Muslims all over the world, including India, were considering Caliph as their religious head. As their religious head. Muslims all over the world, including India, were considering Caliph as their religious head. वो उसको religious head मानते थे. And this will do what? Okay? This, read this, this announcement or this decision of Britain hurt the religious sentiments of Muslims in India also. ठीक है? This decision or this announcement of Britain hurt the religious sentiments of Indian Muslims. Religious sentiments of Indian Muslims. तो इसने क्या किया? It hurt the religious sentiments of Indian Muslims and as a result, अब देखो, this is India, ये इंडिया है, and in India there are Muslims also, और इंडिया में ब्रिटिश रूल है, so there are British authorities and British people also. यहाँ पे British authorities भी, British लोग भी, clear? So the Indian Muslims launched a movement against Britain's, launched a movement against British Raj in India. They launched a movement against British Raj in India. Clear? And they were in this movement. What is the cornerstone of this movement or main demand of this movement? Main demand of this movement क्या था? Right? That जो abolition of caliphate system था, this decision was opposed or resisted by Indian Muslims. Abolition of caliphate system, this decision was opposed and resisted by Indian Muslims. Indian Muslims ने इसी डिसीजन को अपोज किया और रेसिस्ट किया, कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, और उन्होंने सोचा कि भाई हमारे इस मूवमेंट से क्या होगा, कहीं ना कहीं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनेगा कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स ब्रिटिश अथॉरिटीज का विरोध करें तो डिसीजन वापस ले लेना चाहिए. फॉर दिस पर्पस दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. तो खिलाफत मूवमेंट शुरू कब हुआ होगा? इट्स वेरी क्लियर. पेरिस पीस ट्रीटी कब है? 1919 में. तो ऑब्वियसली 1919 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1919 में स्टार्ट हुआ. दूसरी चीज आगे मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी, दैट द सेम खिलाफत मूवमेंट वाज यूटिलाइज्ड एंड लेटर कन्वर्टेड इनटू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक है? 1922. तो क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आने से खिलाफत इश्यू डाइल्यूट हो जाएगा क्या? नहीं, खिलाफत इश्यू डाइल्यूट नहीं होगा, वो बना रहेगा. मेरी बात समझ गया ना? खिलाफत इश्यू विल नॉट बी डाइल्यूटेड, ये बना रहेगा, बट खिलाफत मूवमेंट प्लेटफॉर्म विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एनसीएम. फाइनली इन 1924, read this, in 1924, right, यहाँ पे नोट कर लो, political regime was changed in Turkey. Political regime was changed in Turkey. टर्की में political regime change हो गया, and here a new leader comes, ठीक है, और ये मुस्लिम लीडर ही था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है ना? That is the most important point. So you can write here that political regime was changed, and here a new leader will come, and this new leader name is Mustafa Kamal Pasha. And this leader himself started, or he took pledge for the modernization of Turkey. इसने कहा मैं टर्की को मॉडर्नाइज करूंगा और मिडिवल एज सिस्टम खत्म करूंगा, कैलिफेट सिस्टम खत्म करूंगा. मतलब उन्हीं का लीडर, मुस्लिम लीडर ही आके यहाँ कह रहा है कि मैं मॉडर्निटी लाऊंगा, कैलिफेट सिस्टम खत्म करूंगा, तो ये इशू तो अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा. मेरी बात समझ गया ना? जैसे मान लो कि मैं हिंदू हूँ और मुस्लिम सोसाइटी में किसी रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कहेगा यार हिंदू आदमी है कह रहा है तो इसके कुछ इंटेंशंस नहीं सही होंगे.
बट अगर मुस्लिम सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कल्चरल इशू या सोशल इशू, कुछ भी रिचुअल ऐसा पर्सपेक्टिव, एंड इफ मुस्लिम विल कम एंड विल अपोज दैट, तो उसकी बात का वजन ज्यादा होगा। मेरी बात समझ गया ना? तो दिस विल हैपन। तो बेसिकली खिलाफत मूवमेंट इन इट्स इंटेंसिटी वाज सीन ड्यूरिंग 1919-20। इंडिया में ये अपनी फुल इंटेंसिटी में इसी टाइम पीरियड में 1919-20। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट जो है, ठीक है, इसका प्लेटफॉर्म मर्ज हो जाता है एनसीएम के साथ, लेकिन एनसीएम में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा कि कैलिफेट सिस्टम को बनाए रखो। ध्यान रखना, एनसीएम नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस का सपोर्ट है, और कांग्रेस का सपोर्ट है तो ये पार्टिकुलर क्लास इशू, रिलीजियस इशू को कांग्रेस कभी नहीं रेज करेगी। गॉट इट व्हाट आई मीन टू से? ठीक है ना? इसके बाद क्या है, 1924 आते आते दिस खिलाफत इशू विल बी डाइल्यूटेड बाय इटसेल्फ। सो ये आपको टाइम पीरियड याद रहेगा। जनरली मैं क्या लिखता हूं व्हेन आई राइट खिलाफत मूवमेंट, आई राइट 1919-20। व्हाई आई राइट 1919-20? अब आप समझ गए ना? 1919-20 बिकॉज 20 से क्या हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 22 तक। फिर 24 में टर्की में कौन आ जाएगा, मुस्तफा कमाल पाशा, कैलिफेट इशू ऐसे ही डाइल्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द एंटायर डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द इश्यूज। समझ में आया? टाइमलाइन समझ में आया? 1919-20, 1920-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड फाइनली विल डिस्कस। ओके, सो खिलाफत मूवमेंट, देखो खिलाफत मूवमेंट, अब देखो क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड 1914 टू 1918। लोगों में गुस्सा क्यों है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड। ध्यान से समझना, आप जो बात बताने जा रहा हूं बहुत सारे इश्यूज को कनेक्ट कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, तो पोस्ट वॉर क्राइसिस होगा कि नहीं इंडिया में, बताओ? पोस्ट वॉर क्राइसिस होगा, यस और नो? इन्फ्लेशन होगा, यस। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। वर्ल्ड वॉर शुरू करा दिया इन्होंने। सो दिस विल क्रिएट इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स बिफोर इंडियन पीपल आल्सो। This will create economic challenges or hardships before Indian people also, and that's why Indian people are dissatisfied. यहाँ पे Indian people are dissatisfied, ठीक है? इंडियन लोग खुश नहीं। पहला रीजन, आफ्टर 1918 we are discussing that why Indian peoples are dissatisfied. अब आप रिलेट कर पा रहे हो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन रीजन। ध्यान से सोचना है आकाश, चीजों को एक बार सोचना है, समझना है, एंड इन अ सिंगल टाइम द एंटायर चैप्टर इज कवर्ड। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ो, मेरी लिमिटेशन है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम अभी हिस्ट्री में करना है। वॉट एवर यू आर रीडिंग, टेक वन चैप्टर, फिनिश इट कंप्लीटली, देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नहीं तो ये वीसीएस साइकिल है, कभी खत्म ही नहीं होगा। एवरी ईयर यू विल कीप रिवाइजिंग लक्ष्मीकांत। हर बार बच्चा फिर से फंडामेंटल राइट पढ़ने लगता है। नहीं, 2 पेज पढ़ो, बट उस चैप्टर को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ो कि केवल और केवल आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़े। गॉट इट? ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? डिससेटिस्फेक्शन है लोगों में। कोई और भी रीजन है डिससेटिस्फेक्शन का? बताओ। was there any other reason? Yes, राउलेट एक्ट, जालियांवाला मैसेकर 1919 ही तो था ना। गॉट इट? सो राइट दिस। अनदर रीजन फॉर डिससेटिस्फेक्शन, राइट दिस, राउलेट एक्ट। इससे भी लोग नाराज हैं। राउलेट एक्ट, जालियांवाला मैसेकर, जालियांवाला मैसेकर, ठीक है। द पीपल आर ऑल्सो अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड, इससे भी लोग डिससेटिस्फाइड है। गॉट इट? नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाई पीपल आर डिससेटिस्फाइड। थर्ड पॉइंट देखो, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। was this act, do you think that this act accepted all the political demands raised by Indian people? No. This act failed to incorporate the Indian political demands. ठीक है, लोग इस बात से भी खुश थे कि भाई हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स को एड्रेस नहीं किया गया, खुश नहीं थे, सॉरी, एक्ट ऑफ 1919 में। राइट दिस, दिस एक्ट आल्सो फेल्ड, दिस एक्ट आल्सो फेल्ड टू एड्रेस, this act also failed to address to the Indian political demands. Indian political demand. This act also failed to address to the Indian political demands, and that's why also the people were
डिससेटिस्फाइड, इस वजह से भी लोग डिससेटिस्फाइड। नाउ टेल मी वन थिंग, हु इज डिससेटिस्फाइड, ओनली मुस्लिम्स और ऑल क्लास? ऑल क्लास। देखो, this issue will affect what? This is a all class issue. All these three issues was all class issue. इससे सभी नाराज थे, all class issue था। This was also all class issue, this was also all class issue। ये सारे all class issue हैं। मैं भी कनेक्ट करूंगा वाई गांधी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलग अलग लोगों को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। जब आप लीडर बनोगे तब ये बात समझोगे, मेरी बात समझोगे कि अलग अलग लोगों को एक साथ लेके आना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर लेना, ये बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोगों को साथ लेके चलना। लीडर्स डू मोर चैलेंजिंग टास्क देन ब्यूरोक्रेट्स। आपने ब्यूरोक्रेट्स को सुना होगा सुसाइड कर लिया काम के प्रेशर में। कोई नेता कभी नहीं सुसाइड करता, सुना है क्या किसी लीडर ने सुसाइड कर लिया? रेयर केसेस, ठीक है, रेयर केसेस, ठीक है। तो बना लेते हैं अपने आप को वैसा, ठीक है। बट ब्यूरोक्रेट्स बेचारे सेंटिमेंटल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं बनना है, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं बनना है। अपने अंदर लीडर वाली क्वालिटी पैदा करो और ब्यूरोक्रेट बनो। फिर देखो हिंदुस्तान तुम्हारा नाम आने वाले 100 साल तक नहीं भूलेगा। ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में अपना नाम अमर कर जाओगे। वो ब्यूरोक्रेट्स जिनके अंदर क्वालिटीज ऑफ लीडर है, एंड दे आर ब्यूरोक्रेट्स, ओके, द हिस्ट्री नोज द नेम ऑफ सच ब्यूरोक्रेट्स। आपको बस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर आप कमाल कर दोगे, ठीक है। सभी आईएएस ऑफिसर्स का नाम आप जानते हो क्या? नहीं। बहुत सारे लोगों का रैंक 1 आता है, 1-2 साल में लोग नाम भूल जाते हैं। तैयारी करने वाले बच्चे याद रखते हैं कि इज द टॉपर, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, बट आफ्टर 3 or 4 years you will find that the memory fades, because every year new toppers will come, many of you will become toppers also, आप में से भी कई लोग टॉपर हो गए, but what remains for eternity? Exactly, it does not matter कि आपका रैंक 1 था कि 120 था, बनोगे तो आईएएस ही ना, ठीक है। बट काम कुछ ऐसा कर जाओ, ठीक है, कि लोग एग्जांपल दें, केस स्टडीज हो, जीएस पेपर 4 में बच्चे आपका नाम लिखे, ठीक है, होता है ना, लिखते ना आप लोग भी किसी का नाम, तो ऐसा काम कर जाओ कि आपका नाम लोग जीएस पेपर 4 में लिखें। ओके, चलिए, अब यहाँ पे पैरेलल एक डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज मुस्लिम कॉज। देखो, मुस्लिम कॉज, कैलिफेट इशू, कैलिफेट इशू, गॉट इट? एंड दिस कैलिफेट इशू started Caliphate movement in the year 1920, and this Caliphate movement is not all class movement। ये all class movement नहीं, it's a particular class movement, it is a particular class movement, and this is the movement of Muslims। ये Muslims का movement है, got it? And this movement has a central issue, and this central issue is also religious in nature। यहाँ जो central issue है, this central issue is what? This is religious in nature, religious in nature। ये यूनिवर्सल नहीं है, दिस इशू इज व्हाट? रिलीजियस इन नेचर। तो इस मूवमेंट को लीड कौन करेगा? मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स विल लीड दिस मूवमेंट, वेरी सिंपल। मेनी न्यू मुस्लिम लीडर्स विल कम on the political arena and they will make demand from the British government। The movement will start and write main demands। So what are the main demands in this movement? What are the main demands in this movement? Okay, right, point 1, the caliph's position should be restored। ये पहला डिमांड हो गया, द कैलिप्स पोजीशन शुड बी restored, द कैलिप्स पोजीशन शुड बी restored, दिस इज द फर्स्ट डिमांड, ठीक है, गॉट इट, राइट। सेकेंड डिमांड, द कैलिप्स कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस शुड बी retained। कैलिप्स कंट्रोल ओवर मुस्लिम sacred places, over Muslim sacred places, caliph's control over Muslim sacred places must be retained। ठीक है, caliph's control over Muslim sacred places must be retained। ठीक है, ये मेन डिमांड था, राइट।
many Muslim leaders will emerge on the political platform. Many Muslim leaders will emerge on the political platform. Many Muslim leaders will emerge on the political platform. And one write the names. For example, Ali brothers, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाई थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अली ब्रदर्स. मोहम्मद अली, शौकत अली, दे आर कॉल्ड अली ब्रदर्स. ये कुछ लीडर्स हो गए. राइट सेकंड नेम. ओके. मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद. हकीम अजमल खान. हसरत मोहानी. राइट. हकीम अजमल खान. हसरत मोहानी. हसरत मोहानी. हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी. ओके. डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी. डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक्सेट्रा. डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक्सेट्रा. डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक्सेट्रा. ठीक है ना. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, राइट, और शौकत अली. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स. ठीक है ना. एंड दीज all these leaders were fans, ardent supporters of गांधी. ये सारे के सारे लीडर्स किसके फैन हैं बताओ? गांधी के फैन हैं. दे ऑल वेर, read this, they all were ardent supporters or fan of Gandhi. Ardent supporters or fan of Gandhi. ये गांधी के फैन थे. Now this movement is in progress. Now what is the strategy that they used during this movement? Let's discuss this. The strategies of Khilafat movement. What are the strategies that will be used here? अच्छा बताओ, स्ट्रैटेजी आसमान से टपक के नया थोड़ी ना आएगा. कॉमन सेंस. वही पॉइंट तो लिखना है स्ट्रैटेजी में. मैं आपको ऑप्शनल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जीएस के भी करूंगा, बट ऑप्शनल का डिस्कशन सारा सुनना. ठीक है. फिर आप मतलब हिस्ट्री में एकदम खतरनाक वाली आपकी कंडीशन हो जाएगी. ठीक है. एंड आई विल डिस्कस कि कैसे कॉमन आइडियाज को यूज करके ऑप्शनल का भी आंसर लिख सकते हैं. जीएस तो बहुत छोटी सी चीज है. ठीक है ना. हम उस अप्रोच पे कभी सोचते ही नहीं है. दैट्स व्हाई थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. नाउ यू विल टेल मी व्हाट विल बी द स्ट्रेटजीज दैट विल बी यूज्ड हियर. बताओ कौन सी स्ट्रेटजी यूज होगी. अभी अभी जो राउलेट सत्याग्रह में देखा, बायकॉट यूज होगा. यस और नो? यस, बायकॉट होगा. बायकॉट ऑफ गुड्स यूज होगा. यस. पैसिव रेसिस्टेंस यूज होगा. हाँ भाई, पैसिव रेसिस्टेंस यूज होगा. मुस्लिम्स नाराज हैं, बट ये मूवमेंट मुस्लिम्स का है. बट यहाँ पे एक वर्ड रिप्लेस हो रहा है, दैट इज व्हाट? मुस्लिम्स. मुस्लिम्स विल बायकॉट व्हाट? सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स. सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है. सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बायकॉट करेंगे. अच्छा बताओ, व्हेन मुस्लिम्स विल बायकॉट सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जब आप स्कूल कॉलेज को बायकॉट करोगे तो यू नीड न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस और नॉट? यस. जैसा स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था कि एक स्वदेशी एजुकेशन सिस्टम डिस्कस डेवलप किया था, दैट इज लार्जली अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. ये स्वदेशी में था कि नहीं आकाश? वाज इट देयर कि ब्रिटिश एजुकेशन इन्फ्लुएंस से अलग एक स्वदेशी मॉडल बने? क्या मुस्लिम्स ग्रुप यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से अलग एक एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करें? They will definitely think. So write this point. Now Muslim leaders thought to develop, thought to develop, okay, a new education system or institution that will be away from the influence of British people. इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पीपल. अब वो सोचेंगे कि एक नया एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करें दैट विल बी अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पीपल. अच्छा देखो, थोड़ा सा और डिटेल में जाके बता दूं क्या? कुछ और चीजें क्लियर हो जाएंगी.
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन बताएगा? व्हाट वाज द ईयर मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट? मैंने ट्रिक भी बताया था याद रखने का। आर्य समाज और वो दोनों का एक ही ईयर है, अब बताओ कौन सा है? 1875। 1875 मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। जितना क्लास में पढ़ाता हूँ उतना तो याद रखो मेरे भाई। अलीगढ़ मूवमेंट वही था ना, ठीक है। तो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1875। बाय द नेम ऑफ विच मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट। सेंटर क्या था? अलीगढ़ ही तो था, ठीक है, याद होगा आपको। नाउ इन द सेम अलीगढ़ इन द ईयर 1920, ओके, जामिया मिलिया इस्लामिया विल बी एस्टैब्लिश्ड। देखो ये जर्नी क्या है। इन द अलीगढ़ itself इन द ईयर 1920 किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट होगा? जामिया मिलिया इस्लामिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज लार्जली away from the British influence. This education system will fill the Indians with nationalist feelings and sentiments. Objective क्या है? कि इंडियन मुस्लिम्स के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को डेवलप करना, ये जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट? नाउ व्हाट विल हैपन? ओके, इट विल बी मूव्ड टू, ठीक है, देखो इसके बाद इसका ये आ जाएगा इन दिल्ली, ठीक है, इसके बाद दिल्ली आएगा और फिर देखो लेटर दिस 1925 में ये दिल्ली में आया, ठीक है, और फिर अभी जो इसका प्रेजेंट लोकेशन है बेसिकली वो 1935 में वहां पे डेवलप हुआ, ठीक है। इन दिस वे द डेवलपमेंट टुक प्लेस। 1925 में ये करोल बाग के आसपास कहीं आता है, फिर ओखला में आता है, ऐसे 1935 में नाउ दैट इज द जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसको यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दर्जा भी मिला, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल किसका था? along with the Muslim leaders? Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, read this, the prominent leaders, okay, who helped and supported in the establishment of this university, ठीक है, right, the name is Mahatma Gandhi. Second name लिखिए, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, और ये मोहम्मद अली जौहर पहले वाइस चांसलर भी थे, राइट। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन, हकीम अजमल खान, मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है ना? गॉट इट? मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन एक्सेट्रा। अभी जितना खिलाफत मूवमेंट में लिखा ना वो सारे नाम आ जाए, ठीक है ना? हक, राइट, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी लिख लिया ना आपने, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया, आल्सो वाइस चांसलर, सॉरी, फर्स्ट वाइस चांसलर मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, मौलाना आजाद एक्सेट्रा, मौलाना आजाद एक्सेट्रा, दे ऑल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। और जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होता है? अलीगढ़ में। बाद में ये कहाँ शिफ्ट हो जाती है? दिल्ली में। अच्छा एक बात बताओ, विल गांधी बी सक्सेसफुल इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मुस्लिम मासेस और नॉट? जामिया मिलिया एस्टेब्लिशमेंट के पीछे उद्देश्य क्या है? कि इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट्स के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को डेवलप करना। और ये नेशनलिस्ट फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स, ओके, ये किसके अगेंस्ट यूज होगा? अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। मेरी बात समझ गया ना? दिस इज द पॉइंट। नाउ these Muslim leaders will do what? They all will invite Gandhi, and Gandhi was made, read this, chairman of all India Khilafat Committee. गांधी को बना दिया गया चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। गांधी वॉज मेड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का चेयरमैन बना दिया। द टाइम वॉज नवंबर 1919, जो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा तो मत लिखना, ठीक है। इन नवंबर 1919 गांधी वॉज मेड, दिस डेट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना याद होना चाहिए।
गांधी वॉज मेड ओके चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी. ठीक है. अब नाउ द मुस्लिम लीडर्स विल आस्क गांधी दैट गांधी बाबा प्लीज टेल अस हाउ टू मेक दिस मूवमेंट मोर इफेक्टिव. इस मूवमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए. अंग्रेज हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं. ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं. अब कमान किसके हाथ में थी, बागडोर किसके हाथ में थी, गांधी के हाथ. और मुस्लिम लीडर्स क्या पूछ रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स को विश्वास था किस पे, गांधी पे, on the leadership of Gandhi. Now Muslim leaders are asking Gandhi that Gandhi was president, so obviously they will ask Gandhi that how to make Khilafat movement more effective. How to make Khilafat movement more effective against British Raj. Against British Raj. How to make it more effective against British Raj. Now, what Gandhi suggested, this is very important. What Gandhi suggested, this is very important. उन्होंने पूछा भाई क्या करें खिलाफत मूवमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए. तो गांधी बाबा ने क्या सजेस्ट किया. तो गांधी बाबा के सजेशंस क्या है. पहला सजेशन क्या है, गांधी बाबा ने कहा कि व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन दिस खिलाफत मूवमेंट. क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, टू रीगेन द लॉस्ट पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कैलिफेट. खलीफा के पावर को दोबारा दिलाना, यही तो आपका ऑब्जेक्टिव है ना. आप अपोज क्या कर रहे हो, एबॉलिशन ऑफ कैलिफेट सिस्टम का डिसीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया है. गांधी सेड दैट योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रोग्रेसिव, दिस इज व्हाट, रिग्रेसिव. गांधी ने कहा आप थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सोचो. गांधी सेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट इज नॉट प्रोग्रेसिव, it is not progressive, it is what, regressive, it is regressive. Why Gandhi said that regressive, it's regressive. Gandhi said that you are fighting with British, and in international community British will say that Indian Muslims are fighting to restore the medieval old age tradition, the medieval system, ancient regime, medieval regime. ठीक है. कैलिफ इज द सिंबल ऑफ मिडिवल ऑर्डर. तो ब्रिटिश कैन इजीली रिजेक्ट एंड ब्रिटिश कैन गेन सिंपैथी एट द इंटरनेशनल लेवल कि इंडियन मुस्लिम्स तो पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं. गॉट इट. हम क्या कर रहे हैं, वी आर लिबरेटर्स फॉर द पीपल ऑफ टर्की. टर्की के लोगों के लिए तो हम मुक्तिदाता है. वी आर फाइटिंग टू ब्रिंग मॉडर्निटी इन टर्की, and Indian Muslims are fighting to restore the old order in Turkey, and in this way you will not gain international sympathy and support. Ideological है कि नहीं, yes or no, yes. ठीक है ना. So that is the point. Gandhi said that this is not progressive, this is regressive, because British can easily reject or disregard your demand, disregard your demand. ठीक है. Because you are fighting to restore medieval order, medieval order. ठीक है. And British will gain sympathy. British can easily gain sympathy by claiming that we are bringing modernity in Turkey. हम तो modernity ला रहे हैं, and Indian Muslims are fighting, okay, to bring back the old order. तो ब्रिटिश कैन गेट द सिंपैथी. तो ये तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, यही क्या है, दिस इज रिग्रेसिव का. दिस इज वन लिमिटेशन, ये पहला लिमिटेशन है, दिस इज वन लिमिटेशन. नाउ व्हाट इज लिमिटेशन नंबर 2. दूसरा लिमिटेशन क्या है, दैट दिस इज अ पार्टिकुलर क्लास इशू. You cannot convert or transform it into a great mass movement. कभी भी आप इसको great mass movement नहीं बना सकते. हिंदू नहीं आएगा आपके इस मूवमेंट. So Gandhi said that it is a particular class issue, particular class issue. It is a religious issue, and this issue addresses only Muslims cause or concern. ये केवल और केवल किसको एड्रेस कर रहा है, इट इज एड्रेसिंग ओनली मुस्लिम कॉज एंड कंसर्न. ठीक है. तो दिस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रेट मास मूवमेंट. इसको कभी हम ग्रेट मास मूवमेंट तो बना ही नहीं सकते.
This is the second point, that we cannot transform it into a great mass movement. That is the point. कहा मुझे चेयरमैन बना देने से थोड़ी ना होगा, ठीक है, ये मुस्लिम क्लास इशू है, मैं कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ ग्रेट मास मूवमेंट में? तो ये तो आपकी दूसरी सीरियस लिमिटेशन है। फिर गांधी ने समझाया, कहा कि हु इज योर एनिमी? तो सारे मुस्लिम लीडर्स ने कहा ब्रिटिश राज इज आवर एनिमी। तो गांधी ने कहा कि हु इज योर एनिमी? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर एनिमी। आपका दुश्मन कौन है? ब्रिटिश राज। यू आर अनहैप्पी, यू आर डिससेटिस्फाइड विथ ब्रिटिश राज। आप नाराज किससे हैं? ब्रिटिश राज से। यू आर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश राज। अब गांधी ने समझाया कि देयर आर मेनी अदर ग्रुप्स आल्सो हु आर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश राज। कहा बहुत सारे और लोग भी हैं जो अंग्रेजों से नाराज हैं। वो कौन लोग हैं? बता चुका हूं आपको। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन विल इन्फ्लुएंस ऑल क्लासेस। कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से लोग नाराज हैं और उसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहा है? अंग्रेजों को जिम्मेदार मान रहा है। राउलेट एक्ट आया, जालियांवाला मैसेकर आया, the people are unhappy, discontented, there is anguish in the minds of people against the British। लोग अंग्रेजों से नाराज हैं। गांधी said that। तीसरी बात आ जाओ, एक्ट ऑफ 1919, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द मेन पॉलिटिकल पार्टी and act of 1919 failed to address the political demands of Indian National Congress। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नाराज है अंग्रेजों से। का ये बताओ, जब सबका दुश्मन एक है तो अलग अलग क्यों लड़ना? गॉट इट? Indian Muslims are fighting for a single cause and here other groups are also dissatisfied। So Gandhi said that, okay, what we should do? Gandhi said that what we should do, गांधी ने कहा कि we need to bring some changes, we need to bring some changes, हमें कुछ changes लाने की जरूरत है। और वो changes कैसे आ सकता है? खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, is related to Muslim concerns only, मुस्लिम कंसर्न्स ओनली, ठीक है। तो अगर इस मूवमेंट को हमें ऑल इंडिया मूवमेंट बनाना है, इस मूवमेंट को ऑल क्लास मूवमेंट बनाना है, गॉट इट? इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इनटू, अगर देखो ऑल इंडिया मूवमेंट बनेगा, ऑल क्लास मूवमेंट बनेगा, द इंटेंसिटी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी ग्रेटर, पहले से ज्यादा ताकतवर ये आंदोलन होगा। एंड इफ यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट का ये बड़ा जरूरी होता है। राउलेट सत्याग्रह के टाइम में मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं था, जो एक सबसे बड़ी कमी थी। और जब ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर हम अंग्रेजों पे ज्यादा बेहतर ढंग से दबाव बना पाएंगे। वी कैन मेक प्रेशर ऑन द ब्रिटिश राज। देन ये बात समझ में आई खिलाफत लीडर्स को। खिलाफत लीडर्स सेड दैट, गांधी बाबा, ओके, whatever decisions you will take, we will welcome those decisions, but Indian Muslims were losing confidence in Indian National Congress। इंडियन मुस्लिम्स ने कहा देखो जो भी होगा, अगर लीडर आप रहोगे तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। मेरी बात समझ गए ना? इंडियन मुस्लिम लीडर्स सेड दैट whatever the decision you will take, but we only want you as the leader। हमें कांग्रेस पे उतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास आप पे। ये कंडीशन उनकी पहली थी और यही कंडीशन गांधी को अभी नेशनल लीडर बनाएगी। नाउ गांधी विल गो टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के पास जाएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग चैलेंजेस थे। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आप सबको पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चैलेंजेस शुरू हो गए 1909 से ही। एससीएस फॉर मुस्लिम्स, याद है ना? 1916 लखनऊ सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड व्हाट? टेम्पररी एक्सेप्टेंस टू डिमांड ऑफ एससीएस फॉर मुस्लिम्स। ये क्या था? ये एक तरह से एक्ट ऑफ अपीजमेंट था कि नहीं? समझ पा रहे हो? इट वॉज एन एक्ट ऑफ अपीजमेंट। ये एक्ट ऑफ अपीजमेंट भी था। गॉट इट? Muslim League was continuously labeling Indian National Congress as a party of Hindus। ये अगली चैलेंज मुस्लिम लीग ने क्रिएट करी थी। Continuously Muslim League was crying that Indian National Congress is a party of Hindus। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेपुटेशन खराब हो रहा था।
यहां इस बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा? रिजेक्टेड द डिमांड फॉर एससीएस फॉर मुस्लिम्स। एससीएस को रिजेक्ट किया। सम मुस्लिम ग्रुप्स लॉस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? टेम्पररी एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड ऑफ एससीएस। धीरे धीरे मुस्लिम लीग फिर अपने चाल पे आ गई। मुस्लिम लीग ने कहना शुरू किया ये टेम्पररी एक्सेप्टेंस क्या होता है? अगर आप मेरी बात समझ गया ना? देखो पहले तो टेम्पररी एक्सेप्टेंस करवा लिया, फिर क्या कहा ये टेम्पररी एक्सेप्टेंस क्या होता है? अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम्स का इतना भला चाहती है तो परमानेंटली क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? हो गई गड़बड़। मैंने कहा ना कि अपीजमेंट, कभी अपीजमेंट वाले पॉलिसी, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, ठीक है, अपीज मत करो, नेवर अपीज दैट पर्सन, नहीं तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस ने गलती कर दी थी। तो मुस्लिम्स के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस था मुस्लिम ग्रुप्स के बीच, वो कम हो रहा था। दिस इज द मेन चैलेंज। आईएनसी इज अ पार्टी ना, पॉलिटिकल पार्टी, और पार्टी की पॉपुलैरिटी लोगों से ही होती है, और लोगों में जब सपोर्ट कम होगा ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो हियर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्ट्रगलिंग फॉर व्हाट? सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज constantly constantly losing faith and confidence of Muslim masses. Muslim masses का सपोर्ट जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। It was constantly losing the faith and support of Indian Muslims. Gandhi will come and will discuss Indian National Congress leaders. Gandhi will say that the right time has come to promote Hindu-Muslim unity. गांधी ने कहा अब सही समय आ चुका है जब हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। गांधी सेड दैट द राइट टाइम हैज कम, दिस इज द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी ने कहा दिस इज द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वी कैन प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरी चीज, आईएनसी कैन गेट, आईएनसी कैन रीगेन its lost confidence and faith. INC can regain its lost confidence and faith among Muslim masses. का आईएनसी भी मुस्लिम मासेस के अंदर जो विश्वास कम हो रहा है, इस विश्वास को, खोए हुए विश्वास को फिर से पा सकती है। आईएनसी कैन रीगेन इट्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस and support among the Muslim masses. This is the right time that we can promote Hindu-Muslim unity. तो आईएनसी ने कहा भाई आगे बताओ करना क्या है इसके लिए? Then Gandhi said that INC should support what? Khilafat movement. Indian National Congress को क्या करना चाहिए? Should support Khilafat movement. Now what will happen? Many prominent leaders of INC will come forward and they will say ये क्या बकवास कर रहे हो? Indian National Congress is a all class party, all religion party. शुरू से ही हमारा एजेंडा क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर क्लास इश्यू को हम एड्रेस नहीं करते, और खिलाफत मूवमेंट इज अ पार्टिकुलर क्लास इश्यू, दिस इज मुस्लिम इश्यू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरू से पॉलिसी रही है, मैंने आपको बताया भी था 1887 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया गया था? ताकि रिलीजियस इश्यूज को एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से, ऑक्सिलरी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके। दिस इज द पॉइंट हियर दैट आईएनसी cannot raise a particular class issue. गांधी सेठ ने कहा, गांधी said that where I am saying that particular class issue को raise करना है, we will do what? We will transform Khilafat movement into a new movement, and there will be no any issue of caliphate. Caliphate का उसमें कोई मुद्दा नहीं होगा, but we will launch an all India movement against the British Raj. This is the right time. Gandhi said that we will do what? We will transform Khilafat movement into a new movement, एक नए मूवमेंट में बदल देते हैं, and this movement will be all India movement, all class movement. ठीक है, मुस्लिम्स विल कम एंड सपोर्ट दिस मूवमेंट। मैंने उनसे बात कर ली है, उनका दुश्मन ब्रिटिश राज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मूवमेंट चलाओ, इफ द मूवमेंट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, मुस्लिम्स विल कम इन सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट। कहा तो हम ये ऑल क्लास मूवमेंट चलाएंगे, ऑल क्लास मूवमेंट, ऑल इंडिया मूवमेंट, एंड देयर विल बी नो एनी इशू ऑफ कैलिफेट हियर, यहाँ कैलिफेट का कोई मुद्दा नहीं होगा। Then Indian National Congress said that this is a brilliant idea. ये अच्छा आइडिया है कि this is the time when we will launch, क्या अगर Indian National Congress will give organizational support, और इस मूवमेंट को सपोर्ट कौन करेगा? मुस्लिम्स भी करेंगे,
तो INC will also get an opportunity to regain the lost confidence and support of the Muslim classes. तो मिलके ये बात तय हुई कि this is a golden opportunity to promote Hindu Muslim unity. ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट को कन्वर्ट किया जाना था एक नए मूवमेंट में, इनटू अ न्यू मूवमेंट. अब देखो, इस न्यू मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी वो थी नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश राज. दिस वाज द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ दिस मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश राज. सो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसी को क्या कहा जाता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. दिस वाज द मेन स्ट्रैटेजी. बट मुस्लिम लीडर्स विल पुट अ कंडीशन. और वो कंडीशन क्या है? दैट इफ गांधी विल लीड दिस मूवमेंट दे विल सपोर्ट दिस मूवमेंट. उनका दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर गांधी लीड करेंगे इस मूवमेंट को देन दे विल सपोर्ट दिस मूवमेंट. एंड इन दिस वे हियर व्हाट वी सी, गांधी बिकम्स द लीडर ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, ऐसे गांधी को लीडरशिप मिलती है. एंड दिस इज व्हाट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. दिस इज द फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ गांधी. दिस इज द फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ गांधी. ये गांधी का पहला ग्रेट मास मूवमेंट है. And this is the first time that this movement got official support and platform of INC. इसको official support और platform मिला INC का. इसका मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट INC के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, अंडर गांधीज लीडरशिप, गांधी की लीडरशिप में हो रहा है. एंड दिस मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल, ओके, इन ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर. हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों साथ साथ आ जाएंगे इस मूवमेंट में. गॉट इट? In this movement, Hindus and Muslims, both these leaders will come together. Got it? So this was an excellent opportunity to promote Hindu-Muslim unity, according to Gandhi. ये prelims में पूछा भी जाता है. Got it? So this movement started when 1920. This movement ended when 1922. Got it? Khilafat movement started when 1919. 1920. What we see that Khilafat platform was utilized. Khilafat platform was utilized for non-cooperation movement. Khilafat platform was utilized for non-cooperation movement. तो जर्नी खिलाफत मूवमेंट की कुछ ऐसी है. 1919 to 20. Then this Khilafat platform was utilized for non-cooperation movement. अब ये क्या चलता रहा? non-cooperation movement चलता रहा 20 से 22 तक. And finally, in 1924, what happened? क्या हुआ कैलिफेट इशू का? If someone asked that, यहाँ पे तो मेन इशू क्या था? कैलिफेट इशू था. The main issue was कैलिफेट इशू. तो क्या हुआ इस मुद्दे का? तो you will say that this कैलिफेट issue was later diluted by itself. ये कैलिफेट इशू क्या होगा? It was later diluted by itself. ये खुद से डाइल्यूट हो गया. कब डाइल्यूट हो गया? 1924. There is a change of political regime in Turkey, जो मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, वही खत्म कर देगा कैलिफेट सिस्टम को. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. बट ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि हियर व्हाट वी सी दैट हियर गांधी इमर्ज्ड एज नेशनल लीडर. यहाँ पे गांधी क्या होते हैं? He emerged as the national leader. And from this time onwards, what happens? गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही हाईजैक कर लेंगे. From this time, देखो इसके पहले क्या था? देखो, this is the equation. From 1885 to 1919-20, Indian National Congress was synonymous of Indian National Movement. चाहे तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहो या इंडियन नेशनल मूवमेंट कहो, बात बराबर है. 1919-20 से लेकर 1947 तक क्या सीन है? इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सिनोनिमस टू गांधी. ठीक है, हियर इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट. Here Indian National Movement was synonymous to Indian National Congress
एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सिनोनिमस टू गांधी, यानी नेशनल लीडर के रूप में एमर्ज होके पूरे के पूरे कांग्रेस को डोमिनेट करेंगे इंडियन गांधी। क्या इससे कांग्रेस के कुछ लीडर्स नाराज होंगे? यस और नो? क्या वो कांग्रेस छोड़ के जाएंगे? हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और यहीं से जर्नी शुरू होगी मोहम्मद अली जिन्ना की। अगली क्लास में बताऊंगा कि जिन्ना पहले कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे, कैसे वो मुस्लिम लीग से जुड़े, कैसे वो धीरे धीरे कॉम्युनल होते चले गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। गॉट इट? सो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हियर दिस इंटायर फेज 1919-20 से लेकर 1947, दिस इंटायर फेज इज नोन एज गांधीयन एरा in national politics. This entire phase is known as Gandhian era in national politics. ठीक है ना? देखो मैं रिवॉल्यूशनरीज भी अलग से बताऊंगा, पटेल को भी उतने ही बेहतर ढंग से बताऊंगा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबके बारे में पढ़ेंगे। बट ये पूरा का पूरा जो नेशनल मूवमेंट का क्लास है, ठीक है, ये पूरी क्लास में यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इसमें एडिटिंग करना होता है वॉइस कुछ। पूरी क्लास डालने के पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट टुडे इज डन। और ये मिस इंटरप्रिटेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? और लोगों ने क्या किया, अपने आप को वायरल टीचर बनाने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे वीडियो को मैं डालूंगा और आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, राइट? बिकॉज दिस विल हेल्प द पीपल इन मेकिंग अ right opinion and valid opinion about the Indian national movement and the freedom fighters of our Indian national movement. I will not do injustice with any single personality in Indian national movement. ठीक है, सुभाष हो या आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो, हर एक चीज मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की जो नेशनल मूवमेंट की है वो बेहतर बने। गॉट इट? आज की क्लास समझ में आई? पूरी स्टोरी समझ में आई? आपको क्या करना है, मैं इतना समझा देता हूँ क्लास में कि मेंस में तो आंसर लिखने में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। प्रीलिम्स के भी सारे फैक्ट्स कवर करता हूँ। ओनली व्हाट यू नीड टू डू इज पीवाईक्यूज को खूब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? और बार बार प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने क्लास में पूछा कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट मुस्लिम सोसाइटी में कब था, तो यू शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट, तुरंत बोलना है आपको 1875। मैं पूछूं आर्य समाज मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तुरंत बोलो 1875, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट ईयर्स, वी कैन नॉट फॉरगेट। पहले बता दिया कि हिस्ट्री में स्ट्रिंग ऑफ फैक्ट्स को नहीं भूलना है। फैक्ट्स तो हजारों है, लाखों है, सब नहीं याद करना है, बट व्हाट वी नीड टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो हमें पता होने चाहिए, जो मैं क्लास के दौरान आपको बताता भी। गॉट इट? सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, कांग्रेस ने कैसा अप्रूव किया, कौन से लीडर्स नाराज हो गए इससे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, द फ्यूचर कोर्स, स्ट्रेटजीज, प्रोग्राम्स, ऑल विल डिस्कस। ओके, ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम।